Bellissimo, veramente. Bellissimo, coffee. 괜찮아. 바닥으로 간 발발이 들었어. Refuse to be told. देखिए बात लोग सीजन 1 और 2 सिर्फ प्राइम वीडियो पर। पैसों की समस्या को तुरंत सुलझाएं, वो भी बिना किसी बैंक जाए। ट्रू बैलेंस पर आए और ले जाए 2 लाख रुपए तक का आसान कैश लोन मिल होंगे। 12 महीने की आसान ईएमआई और फोरक्लोजर ऑप्शन के साथ इंटरेस्ट रेट सिर्फ 2.4% पर मंथ से शुरू। ट्रू बैलेंस आपकी हर जरूरत का साथी। गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें।
women by providing scholarships to help them complete their higher education in science, technology, engineering, and mathematics. Good morning. Take your seat, girls. Vivo.
ये है कुरकुरेगढ़ की गुरु और ये शहबान बुर्गा रणवीर। ये दोनों गांव के बीच दुश्मनी, इन दोनों के बीच प्यार। जाने दो रणवीर, हमारी फैमिली को कोई साथ नहीं ला सकता। ला सकते हैं गुरु, मैं कुरकुरे किंग शेजवान चक्की पे हूँ। कुरकुरे के मसाले मीट शेजवान का तंदेश Vivo. So how I am looking? Am I looking good in this uniform? This is my uniform. Actually, uh, like holistic. These are my badges. If you can see, one side there is a cross of 8 side, which is used in Christian tradition. Okay, the symbol of Christianity, cross, and the other side there is the symbol of Vivek Trivedi riding Garud, or you can say Akal Purakh, or the symbol Khalsa uses. That Khalsa symbol is, and beneath this there is a Trishul kind of thing. So that is Shiv Narayan, and that is also Shiv Narayan. But now you and that moon with 3 stars. If you see, the stars are below, like supporting the moon, and the hollow space will be filled with light of these stars, and the whole covering is of sun, under which, that is the crown. That is that was my crown over all nakshatras, like on existence. uh, okay, and the Om symbol is my representation. So I am live. Om is, you are watching what you make, and I had kept it on the top for Vedic Sanatan, rise again symbol, a new beginning. Actually, the old one was also that I am Mahakal. I searched all these things and now came here.
the baddest thing happened is that my uncle JP Trivedi, he sold the sword of Lord, you can say Lord Kalki or Maharana Pratap. That is a very heavy sword. Like I had once only used it for checking myself that whether I can move it a bit or not, because except my Tauji Prem Shankar Trivedi ji, nobody else has made a full round of it with one hand. Uh, so it was very old. Not it was given to my Tauji by my forefathers. Uh, when like things for that, but I know my stuff. The user is this being and the thing. So I had to, like for some other effect, my khadag is all, it has nothing left. Your atom bomb to before stop, बंदूक की गोली से खून की होली तक सब है उसमें, और लहंगा चोली भी. So but for some specific target or targeting a limited area, if you are known to the kshetra where you are fighting and for what, so you need to have that kind of weapon, celestial weapon. You not, like you need to know the finesse and the geometry and how Mars is the son of Earth, like Vivek Trivedi. धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यहम. So you cannot harness that energy into anything if you are not in the proper way. There is no shortcut, nothing. There is just do how much time it will take, what will it take. Like it is beyond pain and sorrow and your all other whatever you think, be wife, life, husband, and everything else. So not for becoming god or some great personality, but that is the fulfillment of the life that you have acquired all 64 dimensions in you, and you are now know the rules. You are the maker of the rules which are better for the existence. Like you are much more intelligent than the natural and cosmic intelligence. So it is very much overwhelmed, and like he has found something who can tell her something new, because she is Shakti but she don't know where to go. So she repeats the same circle, Bij, Ped, Bij. I mean to say all the information what is how the tree is going to be is already inside the seed. Okay, if it is in general natural condition, it will show the thing it is. It will start looking what it is. Like अमरूद का बीज डालोगे तो फिर वो अमरूद जैसा दिखना शुरू हो जाएगा. अभी उससे तुम कुछ और उम्मीद करके मतलब अपना कर सकते हो. ऐसे ही
कबीर दास ने जो भी बोल दिया था कि ऊंचा पेड़ का उसका खजूर का तो पंथी को छाया नहीं, कल आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर पे पैसा देने पे अच्छे अच्छे खजूर आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ पे लोग खा के उसको जिंदा रह रहे हैं। उतने डेजर्ट में उतने नीचे से पानी खींचने के लिए कैसा रूट और शूट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो इतने न्यूट्रिएंट्स इतना कंसोलिडेट करके कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ें इकट्ठा कर सके कि तुम्हें जिंदा रख ले अपने, मतलब उतने वैसे वेदर में यहाँ पर कि तुम छाया ढूंढ रहे हो, तुम्हें छाया और ये सब नहीं मिल रहा है, ठीक, तभी भी वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ छाया प्रोवाइड कर देता है। मतलब अगर ढंग से तुमने कभी देखा होगा तो, और बैठे रहोगे थोड़ी देर तो अपने आप खजूर एक दो खाने भर के गिर जाएंगे, और चेष्टा करोगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके तोड़ ही लोगे। तो लोगों ने उसे भगवान और ये वो बता दिया। मैं कह रहा हूँ मैंने बनाया है खजूर, वो पेड़ मतलब मैंने बनाया है, वह मेरी क्रिएशन है, अभी उसमें कोई कमी नहीं हो, तुमसे ज़्यादा अच्छा है, अभी तक ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे रहा है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन कि तुमसे वो तुम्हारे आके नीचे बैठने का या तुम्हारे खजूर खाने का इंतज़ार नहीं करता, वो अपने प्रॉपर समय पे अपना काम कर देता है। जिसको कि अब क्योंकि तुमने हाँ मेन चीज़ समझ ली कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्ट की, ये हो तो गया है, अब इधर से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे जाए आदमी, मतलब कैसे खा सकता है वो। अब तुमने अपने ईंधन जो तुम्हें धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांतिम संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्य हम, यानी कि एक प्रकार से धरती और उनके पुत्र मंगल के द्वारा ही प्राप्त हुई है, तो हो रही है वो शक्ति जो डायरेक्टली आप सोलर मतलब अगर आप सोलर सेल से इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ आप सीधे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में फोटोवोल्टेइक वो प्लेट से ऐसे कर लेते हैं स्टोर। वही सेम चीज़ आप, कोयला भी वही चीज़ है, पहले पेड़ सूर्य की उसी कंटिन्यूस साइकिल से न्यूट्रिशन मिलते हुए उसने सोलर एनर्जी स्टोर की, और अब वो ऐसे जलाने पे वो हीट के रूप में अब दूसरी चीज़ में दे देता है। सेम ऐसे ही नेचुरल गैस है, ऐसे ही आलू भी है, वो स्टोर करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप ऐसे करके खा लेते हो, ठीक है, वो है सोलर ही एनर्जी। त्रैगुण्यम च महासूरम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम एक चक्रधरम देवम तम रविशंकर सूर्य नारायण विवेक त्रिवेदी प्रणमाम्यहम्। तो कोई भी चीज़ बनोगे आधे अधूरे से नहीं बन सकते ना, मतलब किसी को अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ बना नहीं जाता है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं जाता है, तुम्हें मौके मिलेंगे, तुम्हें उसमें हर चीज़ में जोखिम होता है, सब लोग लेते हैं, फौजी पैसा लेते हैं, तो जिस दिन गोली खाने का टाइम आता है उस दिन बॉर्डर पे खड़े भी होते हैं, ठीक है, कोई और नहीं जाता है फिर, तो मतलब सेवा के बदले जो चीज़ है वो ले रहे हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी यदि इस पूरे सिस्टम या तंत्र के साथ सर्वोच्चता को प्राप्त करना है, और तो आपको उसी वही मैं बता रहा हूँ, विवेक त्रिवेदी अब आप ऐसे समझ लो, क्योंकि ऐसे मेरा ही बनाया हुआ है वैदिक विधान और सारी चीज़ें ढूंढ करके, मतलब ये रास्ता और सारी लोगों ने चला, तो एक समय पे आप नंबर 1 थे, सोना था अपने आप ये था, क्योंकि रियल साइंस मतलब आप शक्ति आप दूसरी चीज़ से डील कर रहे हो। एक होता है होने वाला जो देख रहा है, जो आप है ऑब्जर्वर जो देख रहे, एक है करने वाला, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आप जैसी इच्छा करते हैं मैं वैसा कर देता हूँ आपके लिए, पर समस्या ये है कि आपको सही शिक्षा नहीं मिली है या आप सही इच्छा कर सकें। आप के जो शब्द मतलब जो सनातन विधान का आपने कुछ मांगा उससे कनेक्ट हुए आपका, तो आप जो शब्द बोल रहे हैं उसका मतलब वहाँ पे
कुछ और निकल रहा, मेरे जैसा देखने वाला आदमी ना हो तो आप लोगों का अभी तक तो मतलब जो आपने या लोगों ने अपने हिसाब से किया है उस हिसाब से तो आप और बहुत समय तक गुलाम बने रहना, ये सब और किसी चीज़ का मतलब इसमें कोई वो नहीं है। मतलब बना, आप पहली लाइन से देखो, ब्रह्मा ने शब्दों से सृष्टि की रचना की, वो ऐसा किया ही इसलिए कि उसे सर्टेन शब्द से जो कि उसके गुण धर्म को ऐसा बताता हो कि आप अगर उसे याद करो या पुकारो तो सीधे मतलब वो सुने, उसका नाम हो। ऐसे कुछ भी नाम रख दोगे किसी का भी नहीं, हम इसे तो लिंक्योरा फोर्टिफोलिया कहते हैं। अब उस पेड़ को तुम बुला मतलब अगर बुलाते रह जाओगे तो नहीं आएगा, पर उसका रियल में एक सिग्नेचर होगा। जैसे मेरा है कलंकी विवेक त्रिवेदी मल्टीवर्स में, आप मुझे बुलाओगे मतलब अगर सही सही से मतलब अगर आप से मेरा मिलने का मन होगा तो आप अगर मुझे बुलाओगे तो मैं कहीं से भी आ जाऊंगा, कोई इसमें मतलब कि हाँ, तो आपको इस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा कि आप ऐसा कर सके। ऐसा करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी मार दोगे, कुछ के साथ कुछ कर दोगे, करने को आप कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ कि जो समय आपको मिलता है वो कटता तो ऐसे ही है ना, तो उसको आप मजबूरी है तो आप करो, ठीक है। किसी एक आदमी को ऐसे काम करना था वरना फिर आप लोग परेशान हो जाते, तो वो काम अभी मेरे पिताजी से भी मिले हैं फौज के सारे लोग, उनसे नहीं हो सकते ये सब काम, किसी एक को करना था तो मैंने वो जिम्मा ले लिया। अब मैंने वो जिम्मा ले लिया तो अब वो इस तरीके से नहीं है जैसा आपने पिक्चरों में देख लिया है कि किसी को भी मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और ऐसे सुनने में भी जब आप सुनते हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय का मतलब ही यही है कि आप हाँ कुछ बहुत अच्छे होने वाली दिशा को अवरुद्ध अगर किया जा रहा है और जब उसे खोला जाता है किसी भी तरीके से, तो जितने भी लोगों या प्राणियों का फ़ायदा होता है वही लोग यहाँ पे रह करके और ये बार बार गंगा नहाने वाले, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा याद है कि कुछ पढ़ाई करने से उनको कोई फ़ायदा खास याद नहीं है, पर उनको इस चीज़ों से कुछ ऐसा फ़ायदा याद है कि वो ये काम उनके स्वभाव में है। मतलब चाहे गाँव में तो पेड़ों में भी को भी मतलब बीइंग के तौर पे उसके साथ व्यवहार, लोकाचार व्यवहार करना डे टू डे और जीव जंतुओं के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे आप सोचते हो कि यू आर इन चार्ज, बट द प्रॉब्लम इज कि मतलब विवेक त्रिवेदी मैं, माई नेचर विल नॉट अलाउ you till all the animals and other creatures in specific number and situation, condition, position are not happily having the reaction they are here to made. Otherwise you won't get food to eat, you won't get fire to burn. Okay, वेरी सून, दैट हैपन्स वेरी सून, बिकॉज मेरा एक दिन 4 कल्पों के बराबर होता है एक सांस में जब मैं योग में होता हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत तेज़ी से घट जाती हैं और अचानक से बहुत इतना कुछ बदल जाता है कि कुछ आपको याद ही नहीं रहेगा। इसीलिए लोगों को याद नहीं है, वो जब उनको याद आएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना रोने, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। अब जब अभी आप नहीं पहचान पा रहे हो, पर जब आप पहचानो, जब तक आप पहचान पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि इतना भयानक काम करने के बाद व्यक्ति को जितना तप करके फिर से छुट्टन पुट्टन पाना पड़ता है। अब उसमें तो आप तो मज़े करोगे, पर लेकिन मैंने जो आपके लिए, जैसे गटर में कोई आदमी घुसा आप ही के घर का साफ़ करने के लिए, जब तक वो अंदर घुस करके साफ़ कर रहा है तब तक आप उसके पास नहीं जाओगे। जब वो बाहर आएगा तब भी आप उससे दूर से ऐसे बात करोगे कि जैसे वो कोई मतलब हाँ, क्योंकि वाकई में वो भी नहीं करेगा, वो भी आपसे मतलब आपको नहीं वो छुएगा वो करेगा। पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है
किसी इस प्रकार की गंदगी को, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे इस प्रकार के वादियाँ या चीज़ें, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ें जाएंगी नहीं। आप ऐसे बीमार पड़े रहोगे। मैं अपने घर में मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलो, मैं साइकेट्रिस्ट से लेके मैं आपको बीमारियों के सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं आपको कैंसर ख़त्म करके दिखाता हूँ बिना किसी चीज़ के, बिना तुम्हारे किसी के एफर्ट के। अगर मैं रहा तो, क्योंकि अभी धर्म अधर्म वाले में मैंने जिसको चुना था वो अभी मतलब मामला पेचीदा हो गया है काफ़ी। ऐसा हो गया है कि मतलब मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को फिर ये पंचभूतात्मक शरीर छोड़ करके प्रलय करनी पड़ेगी, वो वाला सीन करना पड़ेगा जिसमें कि फिर सभी सृष्टि वृष्टि का सब का वो। अभी तक मैं सोच रहा था कि इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं कि बहुत आसानी से हम बहुत ही कम कैजुअलिटी करते हुए, और जो कि सही है, वाकई जायज़ है, जो कि की जा रही हैं, जो कि गलत आदमी मिलने पर की जाती हैं, जो कि हमारे साथ उद्दंडता करने वालों के साथ मजबूरी में हमें करनी पड़ी कि मतलब आप या तो क्लास में बैठ के पढ़ लो, या तो पीछे से कोई आपके सर के ऊपर किताब या कोई चीज़ मार के पीछे छुप के बैठे और फिर ऐसे नाटक करे। मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में बता रहा हूँ। तभी अभी भी आप कितनी देर तक जा कर के कहाँ शिकायत करोगे, क्या करोगे, या फिर कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, फिर बाद में यहाँ पे फिर तो मतलब आगे ही अलग ही बात पहुँच गई। वो सब तो छोड़ो, पर सोसाइटी को, क्लास को भी पढ़ने लायक बनाने के लिए वो सारी चीज़ें टीचरों के बस की नहीं थी। तुमको तो मतलब रियलिटी इज़ रियलिटी। अभी भी बच्चे होंगे तो बता सकते, पर मेरे कहने का मतलब है कि आर्मी ही है जो कि पूरा योगदान इसी यही समय है, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं वाला समझ लो, यही समय है। अगर अपना जो कुछ जो उन्होंने सीखा है डिसिप्लिन, वो सिविलियंस में उतार दें किसी बेहतरीन तरीके से, जिससे कि उन्हें भी मज़ा आ जाए। मेरे कहने का ये मतलब है। और उसमें जो दुष्ट हो उनको मार दो, वो ठीक है, पर और बाकी उसमें सहायता करने वाले मेरे जैसे लोग जो सहायता करें, या और भी बहुत, मैं तो बोल तो रहा हूँ, देखो ना विदेशों से चले जाएंगे तुम लोग अगर थोड़ा सा हाथ आगे कर दोगे। इससे मतलब लोगों को, वरना वो लोग कभी डिसिप्लिन का जो वो वाला डिसिप्लिन नहीं, जैसा जो परेशान करने वाला होता है, एक ऑटोमेटिक बॉडी का ऐसा डिसिप्लिन जिसकी वजह से आप कम से कम बीमार पड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट रहो, ताकि आप स्वयं की और अपने आसपास रहने वाले लोगों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की कम से कम उतनी सेवा कर सको कि वो आपके साथ रह सकें, और आप इतने होशो हवास में रहो कि आपको पता हो कि आप किसी चीज़ के ऊपर थूक रहे हो, ज़मीन के ऊपर, या मतलब या कहीं पे कुछ भी कर्म कर रहे हो तो आपके को मतलब पता होना चाहिए, तब आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, तब ठीक ठीक है। परंतु उपहास के रूप में जिस प्रकार से आप चाहे किसी भी जानवर को मारो, मैं तो गाय तो एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं तो खुद भैंस का दूध पिया कर, मैं चाय पीता हूँ, मतलब दूध तो पीता नहीं हूँ, तो भैंस उसकी अच्छी लगती है, तो वो अब कुछ नहीं बोलती, कोई उसकी कहानी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। अब उसको खाली सूखा कटा हुआ चारा खिला करके और उसको दूधते दूधते रहने से, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि होड़ वगैरह ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसको एक टोटल कंट्रोल, नियंत्रण देने के लिए पूरे इस प्रोसेस को। नहीं तो ये सारी चीज़ें, ये जानवर तड़प तड़प के धीरे धीरे करके, अभी ना सही, आने वाले समय में ये तो जैसे जैसे ये वैसे वैसे ज़मीन, वैसे वैसे आप, वो दुर्गति को ही प्राप्त होगी। वो डीएनए आपका नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, आप ये बात समझिए। आपको यहाँ बार बार घूम करके ऐसे करके अंत में फिर से आपको मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि बात यही कि मैं महाकाल हूँ, मैं नहीं जाता किसी के पास। आदमी खुद मरने के लिए मेरे पास आता है यार। मैं अपनी जगह पे स्थिर हूँ, काल के परे हूँ। जब कोई समस्या होती है तो कोई मेरे पास आ जाता है अपने आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद जानना चाहता हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था अपने ऐसे लोगों का जो बीच अपने बारे में जान करके भी खुश हों
और हम लोग और अच्छे तरीके से योगदान दे सकें। हम मतलब जो भी भारत आपने पढ़ा है, देखा है, या हमने अपने बचपन में अपने बाप दादा लोगों से सुना या पढ़ा है, या जो गरिमा जो हमने देखी, जो हमारे खून में है गरिमा, वो ऐसे तो नहीं आई है ना, वो फौज से नहीं आई है। मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अर्पिता त्रिपाठी जी के साथ जब मैं रहता था तो मेरे साथ 3 मेरे 2 दोस्त और रहते थे, उनके भी पिताजी फौजी थे। एक सूबेदार मेजर अब्दुल गफ्फार खान और से क्लर्क, और एक फौजदार सिंह इन्फेंट्री के, वो उनका लड़का विजय। परंतु उन्होंने रहने और बातचीत करने और ओवरऑल करने के बाद ये कहा कि नहीं, ये जो तुम्हारा डिसिप्लिन या तुम्हारा जिस प्रकार से तुम रहते हो, वो फ़ौज का अगर तरीका होता तो ये भी वैसे ही रहते, पर ये वैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारे और इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और चैतन्य हो, पर लेकिन बहुत कंट्रोल्ड हो। ऐसा करके जब किसी ने जब मुझे बताया तो मैंने उस पर थोड़ा और काम किया, जिसकी वजह से मुझे और भी बहुत कुछ समझ में आया। तो ये चीज़ें जिसे भी लोग बोलते हैं कि ऐसे सीखा जा सकता है कोई गुरु से या किसी से सीख, नहीं, आप किसी से कोई भी चीज़ सीख सकते हो तो केवल देख करके, मतलब उसका अनुसरण करके सीख सकते हो रियल टाइम में। बाकी आप जो कुछ भी सीखते हो वो उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। एक्चुअल में आपने उस व्यक्ति से नहीं सीखा, क्योंकि उस व्यक्ति के, अगर किसी से आप कुछ सीख रहे हो तो उसके पैर उठाने में भी ही उसका अल्टीमेट जो जीत, यदि अगर वो निशानेबाज है तो उसका पैर उठाने के तरीके में ही उसके अचूक निशाने का राज छुपा हुआ है। तो आप अगर उसे दूर से आप सोच रहे हो कि वो आपको ऐसे कोई कुछ बता देगा या कुछ कर देगा, नहीं, तो आपको आप में उससे ज़्यादा काबिलियत हो सकती है, पर आपको बिना कुछ अब मतलब जैसा टीवी में दिखा दिया कि लोग ये मांगते हैं, कोई कुछ क्या करते क्या नहीं करते मैं ही नहीं जानता, पर हमारे यहाँ के हिसाब से जो भी उचित और योग्य व्यक्ति होता था उसे अपने साथ में ऐसे मतलब रख के अपने से ज़्यादा अच्छा बना दिया जाता था, ताकि कभी वो मतलब उसकी कोई शिकायत ना रह जाए तुमसे कि कोई एक आदमी मिला था। मैं यहाँ एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने अल्फ़ा फिटनेस जिम खुलवा दिया, हरियाणा का मेरा दोस्त था मनीष, उसको पूरी एक्सरसाइज सिखा करके और मेरठ से उसका पूरा जिम का सामान खरीदवा करके, और यहाँ पे शंभुनाथ इंस्टीट्यूट के पास, ठीक है, तो उसका अपना सब चलने लग गया। नहीं तो आप देखते ही हो कि हरियाणा में जो एक्चुअल ठेठ में वैसे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके पास कोई चारा ही नहीं था, मैं जो कर सकता था मैंने उसको इस प्रकार से लगा दिया किनारे। पर लोग एहसान फरामोश होते हैं तो, और थोड़ा डरपोक तो कुछ ज़्यादा ही है लोग आजकल। कोई ऐसा मेरे जैसा काम करे तो आदमी अपना धीरे से निकल लेता। ठीक भी है भाई, मैं तो अपना सोच समझ करके आया था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको अपना देखना, देखो मेरे को तो मरने में मैंने बता रखा है ना कि मैंने अपने काट लकड़ियाँ पूरा पराली और कफन और पेट्रोल जो है रख रखा है जरीकेन में। तमन्ना से कहना आ जाएगी आराम से चुपचाप। ये वीडियो है प्रूफ कि वही मेरी लाश को आग देगी, और बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। फिर तो वहीं उसी में ही बहुत बड़ा जगह है यार, पीछे इधर भी जगह, बगल में गंगा जी हैं 500 मीटर दूर। अगर इधर ना लगे तो लकड़ियों की लदवा करके यहाँ आ जाएंगे तुरंत ही। ट्रॉली पैसा दे दूंगा पहले ही, अगर होगा ऐसा तो लदवा के वहाँ फूक फाक के ख़त्म करना, इसलिए ताकि फिर बनाने वालों को भी तो अभी देखो ना कितना चुल्ल मचेगी। मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरे को जाने तो दो, मेरे को जाने तो दो मैं तो हिलूँ तो सही कहीं, देखो तो सब ये मेरे अपने जीवन का निजी अनुभव है कि मुझे चाहने वालों ने मुझे बहुत चाहा है, और मैं उनको बहुत 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 सर झुका करके दंडवत प्रणाम करता हूँ, और उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हीं के लिए मैं नहीं तो मेरे को, मैं और जसलीन, हमें कोई
मतलब ही नहीं है, हम खाली आते ही हैं अपने प्यारों के लिए, है ना। कभी कभी थोड़ा मैं ख़राब दिखने लग जाता हूँ तो गुस्सा कर लो, जब देखोगी नहीं तो क्या करूँगा मैं, खाना था खाने को नहीं है, ये नहीं कि बना कुछ मतलब दूर से खिलाती हूँ ऐसे करके, उसमें से उससे किसी का पेट भरता है। ये मम्मी ने खिला पिला गबरू जवान बनाया, तो तुमने तो पता नहीं क्या कर दिया है। अभी तुम्हारी मम्मी शिकायत करता हूँ। और तमन्ना दिल वाली रोटी पता नहीं किसको खिला रही है। और रंजीता का तो भाई पूछो मत, उसने तो ऐसा दिल तोड़ दिया है, अगर मैं मर जाऊँ तो उसे कुछ मत कहना बेचारी को।